Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you in this third day of the series, where we are discussing income tax reassessment process, technical issues, assessment, and various other matter. And today is another important topic which we have to discuss by Advocate CA Divyanshu Agrawalji, my good friend. And we have another director of this course, CA Sachin Sinha, who have designed this beautifully to coverage all the proceedings, all the issues in this. Divyanshuji is practicing in the field of litigation only as an advocate with the various high court and other matters. So before starting of the presentation, I request Sachinji to say welcome address. Thank you so much, Sumit bhai. And of course, since you have given me the opportunity to welcome my elder brother and mentor, Divyanshu bhai, who is a legend, a living legend, and I can say is an encyclopedia of all the sections. And he has a great knowledge, and at the same time, he has great appearance in the various courts. And as far as concerned to drafting, as we always say, that chartered accountants are generally lacking in drafting, and that is the core area of practice of lawyers, where they litigate by and drafting. Their drafting skill is also upgraded. So it is a very good opportunity for everyone who is attending this webinar, either by attending today or by virtual visit on the YouTube live. This is going to be a good session, because the drafting skill, if you improve your drafting skill, then you can only convey to the commissioner or to the appellate authority that actually what you want to convey. Otherwise, the whole purpose of your knowledge will defeat. So for this, we have a great personality today, Divyanshu sir, and I welcome you, sir, over this platform. And so far, the session, all the session was excellent, and today is the last day this series of webinar, and I personally feel that this seminar is going to be excellent. So with this, thank you so much. Now over to Sumit bhai. Ji. Thank you, Sachin bhai, for welcoming and wonderful introduction of the our own CA Divyanshu bhai. Now I request Divyanshu sir to take up the technical issue overview and whatever you want to take along with the drafting skill you want to tell. So over to you for your deliberation. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sumit bhai. Thank you, Sachin bhai. Thank you so much, Team CASA, for inviting me again. Reassessment, a very interesting area, reassessment. The provision of reassessment is not only in income tax law, in other, earlier there was a sales tax law, VAT also, there was a reassessment provision. So reassessment, as everybody is aware, reassessment provision, income tax, we read Income Tax Act 1961, every year amended through Finance Act, but previous to the Income Tax Act 1961, there was Income Tax Act 1922. Independence के पहले से Income Tax Act 1922 was going. Reassessment का जो provision है ये बहुत पहले था, 147 section को पहले section 34 कहते थे. During 1922, there was a power still there with the department. Objective ये होता है इस reassessment provision का, अगर हम बात करें कि are we lacking somewhere or the department is losing somewhere, because the revenue is very important source. The tax is a very important source of revenue for the government. इसलिए ये provision since beginning it was there, but समय के साथ साथ modify किया गया, powers reduce, change किए गए. I'll explain each and everything. हम इसको categorize कर रहे हैं. Prior to Finance Act 2021, what was the law? Effective from Finance Act 2021, that is effective from 1st April 2021, the law has been changed completely, reassessment. What type of litigation which happened because of that? In spite of the new law coming into the picture, the department has issued notices under old law, taking the benefit of the notification. I'll touch on those points also. Various litigations happened pan-India, many writs in many different high courts. And later on the matter travels. The first high court judgment, the division bench first high court judgment of Honorable Allahabad High Court, the matter, the department filed an SLP before Honorable Supreme Court. The matter was heard last week only. Fortunately, I was also part of that matter. The judgment is reserved. I'll come to that also. We don't know what is the outcome of that judgment. The judgment is still reserved.
Simultaneously, we'll address what are the important things which we need to see. During my experience as a litigation, what I have observed, हम छोटे छोटे errors करते हैं, like at the time of drafting an objection, we miss many important points. Or later on होता क्या, when we file a writ, the court doesn't want it to apply the discretion under Article 226, और कई बार objections proper draft नहीं होने की वजह से writ dismiss भी हो जाता है. हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए at the time of drafting a reply before the AO, because वो जो है that is a foundation or the backbone of the complete litigation. आपका मैटर किस लेवल तक ट्रेवल करेगा आपको नहीं मालूम. क्वांटम अगर बड़ा है, might be the matter travels till the level of Supreme Court. जो फाउंडेशन आपने नीचे सेटअप कर दिया वो फाउंडेशन ही मूव करेगा ऊपर. सो हमें क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, वो वील डिस्कस. I'll start with is the screen visible, Sumit ji? Yes. ठीक है. Devanshi ji. So, section 34 of the 1922 was the section which talks about, under the old law, the reassessment. Later on, during 1961, this old section 34 split into 7 sections of 147 to 153. So, ये provision बहुत पहले से है. कुछ conditions, let us know certain conditions, because आपके पास practically बहुत सारे notices आए होंगे पुराने law में, wherein you are supposed, Purana law means if I talk about 30th March 2021, you received a letter जिसकी compliances चल रही है, हो सकता है by that time you'll receive an order also, but appeal में भी आपको लेना है, तो we just wanted to touch in those points also कि पुराने law में till 31st March 2021 what was the law. आपको पता है certain conditions we have touched in this slide. The assessing officer has to record the reason for taking action under section 147. A very favorite line which we always talk about, reason to believe. Under old law, there was a concept called reason to believe till 31st March. हम हमेशा अपने litigation में we used to challenge whether the learned assessing officer has a reason to believe or not. Just by getting the information from the investigation team or from somebody else, or maybe somebody has informed, given a statement that this X person has given this amount of money. Is it a sufficient document, or the assessing officer has to apply his mind? Is it also important? ये सारी litigations consistently we were doing. Second important bullets was recorded reason must have a live link with the formation of the belief. The underline and the italics part is relevant, where we used to challenge the notices before different forums. Jurisdictional condition under section 147 is the formation of belief by the assessing officer. And what we were discussing is the law till 31st March 2021. No action can be initiated under section 147 after the expiry of 4 years. So, friends, under the old law, there was, if I divide the old law under two pieces, two types of things comes into 147. One, wherein there was no original assessment. 143 subsection 1 case comes to 147. Or second category cases were those cases wherein you have already gone through original assessment, maybe limited scrutiny or maybe complete scrutiny under 143(3), and then you receive 148 notice. So the fourth bullet talks about those category wherein you have already gone through original assessment. So हमेशा 148 के cases दो part में divide होते थे, 143(1) to 148 और 143(3) to 148. अगर if it is 143(3) to 148, एक terminology हम use करते थे, change of opinion. ये वर्ड हम यूज ही तब करते थे जब ओरिजिनल असेसमेंट या तो लिमिटेड स्क्रूटनी और कंप्लीट स्क्रूटनी वाज डन, एंड वेयर इन ड्यूरिंग द ओरिजिनल असेसमेंट द असेसिंग ऑफिसर हैज स्पेसिफिकली रेज्ड अ क्वेश्चन एंड यू हैव रिस्पोंडेड टू दैट क्वेश्चन, एंड बेस्ड ऑन दैट द एओ वाज सैटिस्फाइड एंड they pass an order. Either they record those things in the order or either they don't record those things in the assessment order. But after 4 years, why I'm telling after 4 years? Because friends, under old law, under section 149, there were two conditions. Within 4 years, are they issuing a notice, or after 4 years? Third condition was inserted in Finance Act 2012 when they have inserted a provision called 16 years in the case of foreign assets. So there were three criteria under old law: 4 years, 6 years, and 16 years. And if you have already gone through original assessment and 4 years has already been elapsed, then the AO has to specifically inform in a reason to believe that is there any failure on the part of the taxpayer to disclose fully
and truly all material fact necessary for his assessment or not. This is one of the reason based on which the litigants filed a lot of writ petition before the jurisdictional high court, jahan ye point raise hota hai ki this was a query raised during the original assessment, these we were handled, these we have responded. In spite of that, the AO is issuing a notice under the same criteria. लेकिन ये वो केसेस हुए जहां हम चेंज ऑफ ओपिनियन वर्ड यूज करते हैं. फ्रेंड्स, चेंज ऑफ ओपिनियन वी नेवर यूज्ड इन द केस ऑफ 143(1). 143(1) चेंज ऑफ ओपिनियन होता ही नहीं, क्योंकि एओ ने कभी उस चीज को एनालाइज नहीं किया. आपने देखा होगा बहुत सारे ओल्ड लॉज में नोटिसेस आए थे ड्यूरिंग द पीरियड. दो कैटेगरीज में नोटिसेस डिवाइड हुए थे, इधर 143(1) और 143(3), 148. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लिटिगेशंस होती थी. सेक्शन 151 में there was a condition that prior to issue of notice you were supposed to take a sanction from sanctioning authority. इस पे भी बहुत सारी litigations है. I'll take a small example. First I'll explain. 151 में within 4 years अगर notice issue होती है, so there was the jurisdictional person who can issue a sanction was Joint Commissioner Income Tax / Additional Commissioner Income Tax. अगर इन्होंने sanction किया है before the date of issue of notice, ये mandatory condition है. And after 4 years it was PCIT or CCIT और Principal Commissioner Income Tax और Commissioner Income Tax. ये mandatory condition होती थी. आपने देखा होगा बाद में जो notices आते थे 148 digitally sent, उसमें bottom पे last line होती थी sanction has been taken from this authority. लेकिन बड़ा interesting case आपने देखा होगा during this last 1 year regime, they are issuing you a 151 sanction either not digitally signed by the superior officer or digitally signed. Interestingly, the time of signing was later on the time of signing of the notices. इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट में भी रिट फाइल हुआ. रिट नोटिसेस कॉश हो गए just because कि आपने at the time of issuing 148 notice उसके बाद की डेट का आपका 151 है. यानी दो कंडीशंस प्रॉपर थी. jurisdictional assessing officer नोटिस इशू करेगा. 148A subsection 2 कहता था रीजन टू बिलीव शुड बी रिकॉर्डेड प्रायर टू द इश्यू ऑफ नोटिस. ये भी सिस्टम बहुत डिफॉल्ट हुआ इस बार. आपको नोटिसेस 143(2) के साथ दिए गए और आपको डिजिटली सेंड ऑन दैट डेट. मांगने के बाद भी दे हैव नेवर सप्लाइड यू दैट वेदर द नोटिसेस हैज बीन इशूड प्रायर टू इश्यू ऑफ नोटिस और नॉट. ये लास्ट 1 ईयर में स्पेशली 31 मार्च के बाद ये बहुत सारे लिटिगेशंस हुए. कई बार नहीं मिला, कई बार यू फील कि कई बार डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं होते थे. These were the important conditions. और ये jurisdictional conditions हैं. 151 mandatory meeting होनी चाहिए, 148 subsection 2 reason to believe होना चाहिए. ये सब mandatory condition है, क्योंकि 148 और jurisdictional assessing officer can only issue notice. Non-jurisdictional AO cannot issue a notice. ये सब mandatory conditions थी. Mandatory conditions थी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा at the time of replying to the AO. हो सकता है because I am little fast. So, आपको पता होगा 2003 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसका नाम था जीके एंड ड्राइव शॉट. जीके एंड ड्राइव शॉट में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है. पहली कंडीशन कही कि जैसे ही व्हेनेवर दे इशू यू अ नोटिस प्लीज फाइल योर रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द एओ. रिटर्न फाइल करने के बाद you have a right after filing the return to ask for reason to believe from the AO. Ask for the material they have. ये सारी चीजें आप उस लेटर में लिखेंगे. उसके बाद as soon as they supply your reason to believe quickly you have to file an objection against that. Objection अगर आपने नहीं फाइल किया and you lose that right and you start responding on the merit document, might be you lose your right. तो आपको वो फॉलो करना बहुत जरूरी है. Objection or objection is an art. मतलब you need to be an architect to draft an objection. एक छोटी एरर आपके केस को डिमोलिश कर देती है just because हमने objection properly ड्राफ्ट नहीं किया या properly हमने पॉइंटर्स नहीं लिए. जब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं जो डायरेक्शंस उन्होंने दिए थे, when we file, then it is mandatory for the assessing officer to pass a speaking order by disposing of the objection first. ऑब्जेक्शन डिस्पोजल करने के बाद ही कैन प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज ही कैन नॉट. अगर उसने ऑब्जेक्शन डिस्पोजल नहीं किया, दिस इज इन वॉयलेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. उस स्टेज पे आप ट्रिगर कर सकते हैं. यू कैन कंसल्ट अ लॉयर ऑफ योर्स, अ गुड काउंसिल, एंड डिसाइड वेदर यू वांटेड टू चैलेंज दैट थिंग बिफोर अ रिट जुरिसडिक्शन, इन्वोकिंग अ रिट बिफोर अ जुरिसडिक्शनल
हाई कोर्ट और नॉट, वो एक स्टेज है जहां आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई। ऑब्जेक्शन डिस्पोजल में अगर उन्होंने क्राइटेरिया पूरी नहीं ली तो ये क्राइटेरिया, यानी पहली कंडीशन जी कैन ड्राइव शॉट। उसके बाद एक बहुत अच्छा जजमेंट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में दिया इन द नेम ऑफ सब इंफ्रास्ट्रक्चर, अ वेरी गुड जजमेंट। आई एम नॉट गोइंग इनटू द जजमेंट। लास्ट में देयर वर 4-5 कैटेगरीज डिसाइडेड एंड डिजाइन्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट कि क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इट इज नॉट अ कॉसी जुडिशियल, ये कॉसी जुडिशियल इट इज नॉट, इट्स मैकेनिकली ऐसा नहीं हो सकता कि मशीनरी वाइज आपने उसको नोटिस इशू किया, एक प्रोसेस दिया कि जो एओ हैज टू कंप्लाई। सो वो जजमेंट फॉलोड बाय आफ्टर जी कैन ड्राइव शॉट, दैट जजमेंट इज वेरी गुड। और वो जजमेंट अगर आप आईटीआर देखेंगे, गुजरात ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट इज कंप्लाइंग एंड फॉलोइंग दैट जजमेंट कि उस जजमेंट में ये कंडीशंस और डायरेक्शन दिया गया है सो दैट लिटिगेशन रिड्यूस हो पाए और एओ कैन कंप्लाई विद दोस। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर ओल्ड लॉज टिल 31 मार्च 2021। जो मैंने आपको कोर्स ऑफ एक्शन बताया वो इस स्लाइड्स में है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था 2003 का जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा ये प्रोसेस फॉलो करना है आपको। कुछ इश्यूज क्विकली, कुछ इश्यूज देखे क्या क्या इश्यूज आ रहे थे लिटिगेशंस में। Does a reasons have to be recorded prior to issue of notice? Yes. 148 subsection 2 says yes. Reasons, recording of reasons before issuance of notice is mandatory? Yes. In a reasons, the AO has to disclose and open his mind properly. That is very important. Reasons recorded should be communicated thereof to party concerned within a reasonable time. ऐसा नहीं है कि रीजंस आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं और लास्ट में मार्च में जाके आप रीजंस दे रहे हैं और आपने उसको टाइम नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस इस बार हुए जहां उन्होंने रीजन सप्लाई नहीं किया, मांगने के बाद मार्च में दिया और विद इन टाइम नहीं था, 5 दिन बाद हमने ऑब्जेक्शन दिया, 2 दिन में ऑब्जेक्शन डिस्पोजल किया, या कई ऐसे केसेस में ऑब्जेक्शन डिस्पोजल नहीं किया, 142(1) इश्यू किया और शो कॉज कर दिया 144(b) में। ऐसे बहुत, आपको चेक्स एंड बैलेंसेस देखना, आपको देखना है कि चेकलिस्ट सारी कंप्लाई हो रही है कि नहीं। एक चीज और देखना है, somebody else cannot dictate the AO about what inferences whether of facts or laws should be drawn. AO की application of mind होनी चाहिए. It is for the AO to reach to the conclusion as to whether there was failure on the part of the assessee to disclose fully and truly all material facts necessary for his assessment. It is cannot be on the basis of mere guess, gossip or rumors. These all issues we have taken from different judgments. What are the ratios? What were the issues before the different courts? These were the issues which goes to the courts. Notice issued by AO who had no jurisdiction. Example, Circle 23(1) was your jurisdictional AO. Notice issued by Circle 18(1) ACIT. Later on 143(2) issued by your jurisdictional AO. So is it good? No. Jurisdictional AO has not issued the notice. This is not the mandate of the statute. So you need to see whether the notice is issued by your jurisdictional AO or not. That is also very important. But you need to raise those points in your objection only. आप ऐसा बहुत ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां हम लोग गए हाई कोर्ट में, रिट में, कोर्ट ने एक ही क्वेश्चन पूछा, मिस्टर अग्रवाल टेल मी वेदर द पिटिशनर हैज रेज्ड दिस इशू इन एन ऑब्जेक्शन और नॉट। मैंने कहा माय लॉर्ड दे हैव नॉट रेज्ड दिस इशू in an objection, but my lord, this is a jurisdictional point. Categorical answer was, I'm sorry, because Article 226 gives a discretionary power to the High Court. High Court has its own view. Honorable High Court has categorically mentioned, I'm so sorry, we cannot interfere at this stage. You cannot come out with a new grounds and new facts before the High Court until as you have not raised and the AO has not adjudicated those issues. So the pointers was the reason for not even issuing a notice was the petitioner has not raised those points in an objection. सो ऑब्जेक्शन कितना इंपॉर्टेंट आर्ट है जहां ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट करना, एक छोटा सा एरर केस को डैमेज कर लेता है अगर हमने ऑब्जेक्शन स्टेज में नहीं रेज किया उसको। सो ये प्रैक्टिकली आई एम नॉट सेइंग एवरी हाई कोर्ट इज गोइंग टू सी, बट यस दे हैव अ डिस्क्रिशन, इट डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट। सम कोर्ट कैन एंटरटेन, सम कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन, बट जैसे ही आपने ऑब्जेक्शन में नहीं लिया तो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर आपके पास आ जाता है कि आप पॉइंट्स ले तो रहे हो सकता है कोर्ट कहे कि आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। So it is always better that you raise all your points before in an objection only.
Okay, now if you believe that sanction has not been taken, or sanction has not been digitally signed, or sanction has been issued by a wrong authority, like take an example, within 4 years PCIT has issued a sanction, or after 4 years JCIT is issued a sanction, you raise all those points in your objection. It is important to raise every point in an objection. If notice is issued and sanction is obtained on same day, the same must be referred in the objection. You need to write it down. If the digital signature is not there, please mention in your objection. Now, one more point, AO should give sufficient time to assess after dispute. There was certain judgment which talks about generally notice stage पे बहुत कम high courts interfere करते हैं. वो हमेशा ये कहते हैं, you please come and follow honorable Supreme Court direction in the case of GCAN drive shop judgment. So general जो stage होता है writ file करने का या challenge करने का होता है objection disposal stage. फिर मैं कहूंगा कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ज्यूरिसडिक्शनल पॉइंट पे इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन आ जाती है क्योंकि ऑब्जेक्शन डिस्पोजल नहीं हुआ. सो कई जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि ऑब्जेक्शन डिस्पोजल के बाद एओ मस्ट गिव एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स टाइम टू द असेसी कि अगर उनको ऑनरेबल ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट अप्रोच करना है, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो एटलीस्ट दे गिव देम टाइम सो दैट दे कैन अप्रोच द हाई कोर्ट. बट है प्रोविजन, जजमेंट्स कहते हैं, बट कई बार कंसिडरिंग दिस सिनेरियो जहां मार्च 15 को उन्होंने 15 मार्च को आपको ऑब्जेक्शन डिस्पोजल दिया और 15 दिन में उनको शो कॉज इश्यू करना है और 15 दिन के अंदर उनको ऑर्डर पास करना है बिकॉज इट वाज अ टाइम बार्ड केसेस. सो इन दैट सिचुएशन कंसेप्ट्स फॉलो नहीं हुए. और ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने आए होंगे मार्च में, फरवरी में, ड्यूरिंग दिस टाइम जब आपका असेसमेंट चल रहा था अंडर फेसलेस रेजिम. यू हैव फेस्ड ऑल दोस प्रॉब्लम्स. और आई थिंक जितना एक्सपोजर असेसमेंट्स का पिछले 1 साल में हुआ जब लॉ चेंज हुआ, शायद ही कभी हुआ होगा किसी भी काउंसिल्स को या टैक्स कंसल्टेंट्स को. इतने वैरायटी ऑफ चेंजेस, इतने वैरायटी ऑफ इश्यूज आए हैं डिफरेंट. 2 जजमेंट बड़ा क्रूशियल है 148 पे. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ GCAN ड्राइव शॉप एंड ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन 2016. आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा. सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में भी लास्ट में जाएगा जहां कोर्ट ने द प्रिंसिपल्स लेट डाउन किया कि क्या एओ को फॉलो करना चाहिए. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गुड जजमेंट. Okay, now some of the issues like mere disclosure of that transaction. Now one question, abhi we have talking about there are 2 categories which we have discussed in advance. एक कैटेगरी थी जहां 143(1) के बाद 148 है. वहां अगर कोई इंफॉर्मेशन, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने शेयर ट्रांजैक्शन किया. 2 तरीके के शेयर ट्रांजैक्शन हो सकता है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन और अ पेनी स्टॉक. पेनी स्टॉक वर्ड डिराइव कहां से हुई? हो सकता है एक ऐसी कंपनी में आपने ट्रांजैक्शन किया हो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसी कंपनी में ट्रांजैक्शन किया हो जिस पे सेबी ने रिपोर्ट दी हो जो सर्विलियंस में हो, या सस्पेंड कर दिया हो ट्रेडिंग एक्टिविटी, या डीलिस्ट कर दिया हो स्टॉक एक्सचेंज से. तो जब हम ट्रांजैक्शन स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि अ पर्टिकुलर वो एक ऐसी कंपनी, जैसे टेक एन एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग आयरन ओर, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 लाख रुपए पर मंथ. हाउ इज इट पॉसिबल? अ कंपनी हु इज मैन्युफैक्चरिंग आयरन ओर कांट बी हैव अ 2 लाख रुपीस per month electricity bill, or they have employee cost only 1 lakh rupees per month, which is next to impossible. तो जब ट्रेडिंग हम देखते हैं, बाइंग सेलिंग वॉल्यूम, जहां करोड़ों में बाइंग सेलिंग होती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, वहां कुछ होती है, यानी लिमिटेड लोग कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं. तो जब पर्टिकुलर पीरियड में बेल शेप कर्व बनता है कि अब उसी समय लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वो ट्रांजैक्शन, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने देखा रिटर्न्स में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अ लॉस, अगर गेन हुआ है तो उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, एग्जेम्प्टेड इनकम के कॉलम में इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं आ रहा है, ओरिजिनल रिटर्न में नहीं आ रहा है. और ये आप भी पता, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये नॉन डिस्क्लोजर आ गया, इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स की कैटेगरी में एओ ले सकता है. तो जब 148 आया तो हमने 148 में रिटर्न्स फाइल करने का एक दोबारा मौका मिलता है. देयर आर 2 ऑप्शंस, अगर आप या तो ओरिजिनल रिटर्न को फाइल कर दें, या इफ यू बिलीव कि कुछ एरर हो गई मुझसे ओरिजिनल में, तो आप चेंज कर सकते हैं, एक विंडो खुल जाती है आपकी. हमने उसे एग्जेम्प्टेड इनकम में दिखा दिया. जैसे आपने दिखाया, ऑटोमेटिकली सिस्टम और सॉफ्टवेयर से वेरिएशन दिख जाता है कि ये और इस रिटर्न में ये वेरिएशन तुरंत वो कैप्चर करेगा. हाँ, अगर आप जेन्युइनिटी देखते हो तो पेनल्टी लगाने के लिए वो दैट्स अ गुड ग्राउंड फॉर द एओ. मतलब अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, स्पीकिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट पर्सपेक्टिव कि कहां क्या गैप आता है. एक तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ जो स्टॉक मार्केट में किया. मैंने क्या एग्जांपल देखा,
नोटिसेस आ रहे हैं जहां पे इंट्राडे ट्रांजैक्शंस हैं। 50,000 एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, 50,000 SBI शेयर्स यू हैव सोल्ड इंट्राडे, डिलीवरी नहीं ली, सोल्ड तो आ रहा है सारा, परचेज नहीं आ रहा है। अगर इंट्राडे है तो ऑब्वियसली अगर हमने डिलीवरी नहीं ली है तो हमने परचेज भी किया होगा, सेल भी किया होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि इंट्राडे ट्रांजैक्शन से तो आपने रिटर्न में कहां दिखाया। सो ये इस तरीके से रीजन टू बिलीव फ्रेम किया गया इस बार, माइन्यूट डिफरेंसेस। सो यहां पे आपको ये देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, आपका मेन डॉक्यूमेंट जो ईओ के पास है, अगर आप नॉन टैक्स ऑडिट कैटेगरी में, क्योंकि नॉन टैक्स में ना तो आप बैलेंस शीट फाइल करते हैं ना आप कोई और डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, एक रिटर्न जाता है जिसमें डिटेल्स आती है। तो क्वेश्चन है कि उस रिटर्न में कितना डिस्क्लोजर है आपका। अगर उस रिटर्न में कोई डिस्क्लोजर नहीं है, मान लीजिए एग्रीकल्चरल इनकम कैश डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए, रिटर्न नहीं फाइल किया ये कहते हुए कि हम तो एग्जेम्प्टेड है खेती की जमीन। अब एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है वो तो तहसीलदार सर्टिफिकेट लेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट के बाद। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए का कैश डिपॉजिट है बैंक में, वो रीजन बहुत है और रिटर्न नहीं फाइल किया, दैट इज अ सफिशिएंट रीजन फॉर एन ईओ प्राइमरीली टू इशू 148 टू यू। सो आप 148 इशू को चैलेंज नहीं कर सकते, स्पेशली उन केसेस में जहां आप खुद रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं। तो हमने, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो, कोई नया ट्रांजैक्शन सामने ईओ को आता है, ईओ विल सेंड यू अ नोटिस एंड दैट इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर ईओ टू इशू अ नोटिस। एक वो जहां आरओआई नहीं गया, एक वो कैटेगरी जहां आरओआई गया लेकिन जो डेटा ईओ के सामने आया वो डेटा मैच नहीं कर रहा आपके आरओआई से, और तीसरा वो कैटेगरी होता है जहां आरओआई से सब कुछ मैच कर रहा है, उसके बाद भी किसी थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट पे 148 इशू करता है। बेटर केस आपका थर्ड वाला ज्यादा है जहां आपके पास जस्टिफिकेशन है। वीकर केस आपका पहला केस जहां है जहां आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, क्योंकि जहां रिटर्न नहीं फाइल करते वहां जनरली ऑनरेबल, व्हाट माय, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट एवरीबडी बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां आरओआई नहीं फाइल हुआ है वहां आप रिट में भी नहीं जा पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस में डिफॉल्ट आपकी है। एज एन असेसी अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हैं देन इट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। बट यस, अगर आरओआई फाइल नहीं किया और 148 है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास जहां आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही कैटेगरीज में विंडो खुलती है रिटर्न फाइल करने की, एंड 148 इज ऑल्सो वन ऑफ द केस जहां विंडो खुल जाती है कि अगर आपसे मिस हो गया तो आप फाइल कर सकते हो, बशर्ते यू मस्ट हैव ऑल द जस्टिफिकेशंस। अब पहले और अब में क्या था, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। व्हाट इनकम टैक्स लॉ में जब 1961 में एक्ट आया तो 3 कैटेगरीज होते थे पीरियड्स के केस रीओपन करने के। पहला था 4 इयर्स, सेकंड था 8 इयर्स, थर्ड था 16 इयर्स। ये था 1962 इफेक्टिव से। उसके बाद ये अमेंड हुआ और डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1987 ने उसको 3 कैटेगरीज में, 3 साल कैटेगरीज में डिवाइड किया। 4 को तो 4 मेंटेन किया, 8 को 7 इयर्स कर दिया और 16 को 10 इयर्स कर दिया। 1987 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1989। उसके बाद 2001 में चेंज आया, 2001 में 2 कैटेगरीज जो आपने देखा ना अभी तक। सो फाइनेंस एक्ट 2001 के बाद 20 साल बाद ये 4 और 6 का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था। ठीक 11 साल बाद आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2001, फाइनेंस एक्ट 2012, आपको याद होगा वो बड़ा सेंसिटिव बजट था जिसमें वोडाफोन भी आया, जिसमें आपने याद होगा सेक्शन 68 में आपके वो सारे लवली एक्सपोर्ट्स के जजमेंट खत्म हुए, नोवा प्रमोटर्स आने लग गया, शेयर प्रीमियम वाले इशू शुरू हुए। वो 2012 का बजट था जहां से ये सब पॉप इन शुरू हुआ था। उसमें 16 साल इंसर्ट किया गया, तीसरी कैटेगरी लाई गई 4 इयर्स, 6 इयर्स, 60। उस जमाने में ब्लैक मनी फॉरेन एसेट एक्ट नहीं होता था 2012 में, तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन लेके आए। 2012 के बाद ठीक 9 साल बाद यानी 2021 में इसको चेंज करके 3 इयर्स और 10 इयर्स कर दिया गया। सो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जो फाइनेंस एक्ट 2001 में आया प्लस 2012 में इंसर्ट हुआ है, दैट इज 4 इयर्स, 6 इयर्स एंड 16 इयर्स। आई एम नॉट गोइंग इन 16 इयर्स क्योंकि 16 इयर्स स्पेसिफिकली फॉरेन एसेट्स के केस में था। कोई ऐसी डिटेल्स बाहर से इंफॉर्मेशन आती है जहां ये है कि फॉरेन एसेट्स इन्वॉल्व है, देन दे कैन रीओपन योर केसेस फॉर 16 इयर्स। सो आप देखिए कंटिन्यूअसली टाइमलाइंस चेंज हो रही थी। हम 2021 में आने के पहले आते हैं, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। 13 मार्च 2020 को मेडिकल एडवाइजरी आई, 22 मार्च 2020, 22 मार्च 2020 वाज सुयोमोटो लॉकडाउन एंड 24 मार्च 2020 नाइट 8 बजे शाम को अनाउंसमेंट हुआ, 12 बजे रात से आफ्टर 12 o'clock 3 वीक्स के लिए कंप्लीट ऑल इंडिया लॉकडाउन अनाउंस बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर।
अब चैलेंजेस शुरू हुए। व्हाई आई एम टेलिंग, उसी समय 31 मार्च 2020 को टोलो लाया गया, रिलैक्सेशन ऑर्डिनेंस। आपको पता है ऑर्डिनेंस तब आता है जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वाज नॉट इनटू रूल, जब वो एक्टिव नहीं होते तो ऑर्डिनेंस, अगर अर्जेंसी है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज अ पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग इन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आया और टाइम लिमिटेशन सारे एक्सटेंड हो गए, बिकॉज ये एसएससी को भी प्रॉब्लम थी, डिपार्टमेंट को भी प्रॉब्लम थी, सारे ऑफिसर्स बंद हो गए। कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लगा 30 जून तक हो जाएगा, 30 जून तक टाइम एक्सटेंड किया गया, नहीं हुआ, फिर एक्सटेंड किया गया। जब नहीं हुआ, विद इन 6 months, जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वाज इनटू प्ले, तो टोला बन गया। रिलैक्सेशन एक्ट लाया गया सितंबर में, इफेक्टिव फ्रॉम 31 मार्च 2020, और टाइम लिमिटेशन एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर तक। उसके बाद फिर एक्सटेंड हुआ। अब इंटरेस्टिंगली बजट स्पीच उसी बीच में आया, यानी ये सारी वर्किंग बजट की उसके बीच में चल रही थी। बजट स्पीच आया। बजट स्पीच में बहुत इंटरेस्टिंगली ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस टाइम पीरियड को 3 साल और 10 साल कहा। 10 साल कंडीशन दी, अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम या एसेट वैल्यू इज अप टू 50 लाख रुपीस तो 3 years, और अगर अबव 50 लाख है तो 10 years, बशर्ते 2-3 क्राइटेरियाज रखे गए। पहला क्राइटेरिया, बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस होने चाहिए एओ के पास, ये सारे बेसिस। और वो एओ के पास कैसे आएंगे, आपको ही पता है, इन्वेस्टिगेशन से नोटिस आएगी 133(6) या 131 का सम्मन, आपको कोऑपरेट करना है, आप कोऑपरेट करेंगे, दे विल टेक द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल सबमिट दोस पेपर्स टू द एओ, और एओ को वो रीजन टू एक रिकॉर्ड्स मिलता है जिसके बेस पे वो अपनी इंक्वायरी करता है। ये लॉ बना, पास हुआ, और 28 मार्च 2021, 28 मार्च, अगेन रिपीटिंग, 28 मार्च 2021 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट दे दिया इस बिल, और ये एक्ट बन गया। अब कंट्रोवर्सी शुरू हुई, एक्ट तो बन गया, ये रियलाइज नहीं कर पाया। सो क्या हुआ, 31 मार्च 2021 को दे इशूड अ नोटिफिकेशन, पहला नोटिफिकेशन। आप इंटरेस्टिंग चीज देखेगा, 28 मार्च को जब एक्ट बना तो समझ में आप करे क्या, आपको याद है सेकंड वेव कब आया था? ये आया था, स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, होली के बाद से, 28 मार्च 21 के बाद से ये सेकंड वेव शुरू हुआ। स्मॉल सिटी से शुरू हुआ, दिल्ली एनसीआर बड़े शहरों में पास ऑन हुआ। उसी समय स्टोरी शुरू हो गई थी, प्रॉब्लम शुरू हुआ। सेकंड वेव वाज अ डेडली वेव, वो वही पीरियड था। सो अब क्या हुआ उस केस में, आपको याद है 31 मार्च 1 अप्रैल कंट्रोवर्सी, आई विल कम टू दैट। उस केस में क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन इशू किया सीबीडीटी ने, क्योंकि टोला हैज गिवन अ पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू सीबीडीटी, वो अब नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, बट एक्सटेंशन के लिए कर सकते थे, टाइम एक्सटेंशन। उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया और एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया कि अभी भी, और पावर दी असेसिंग ऑफिसर्स को कि अंडर ओल्ड लॉज आप नोटिस इशू कर सकते हो, यानी आपने ओवररीच करने की कोशिश की। लेजिस्लेचर हैज स्पेसिफिकली गिवन अ मैंडेट ऑफ 3 years and 10 years, and that all the new laws is effective from 1st April 2021. So my respectful summation was at that time कि all the laws were repealed, old laws was repealed, लेकिन नोटिफिकेशन में एक्सप्लेनेशन डाल के ओवररीच किया। अब जैसे ही एक्सप्लेनेशन का कंफर्ट जोन आया, आते ही कंफर्ट जोन में एओ ने नोटिस इशू करना है। आपको याद होगा 31 मार्च की नाइट से कोई 12 बजे, कोई 1 बजे कंटिन्यूअसली नोटिस आ रहे थे 30 जून तक। फिर उसके बाद 27 जून 2021 को एक और नोटिफिकेशन आया जिसने टाइम एक्सटेंड किया टिल 30 जून 2021। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज हुई। अब शुरू हुआ लिटिगेशन, पैन इंडिया लोगों ने नोटिस चैलेंज की। सबसे पहले ये चैलेंज हुआ जून 2021 में बिफोर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। उसमें 148A कहा गया। नए लॉ में क्या आया, मैं नए लॉ को टच इन करता। नया लॉ ने कहा इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 कि 148A का एक प्री नोटिस प्रोसेस इशू किया गया। उस प्री नोटिस प्रोसेस में असेसिंग ऑफिसर हैज टू इशू 148A, दे नीड टू टेक अ रिप्लाई। 148A क्लॉज बी में शो कॉज करेंगे, आपको, आपसे रिप्लाई लेंगे, मिनिमम 7 to 30 days का टाइम देंगे। रिप्लाई लेने के बाद दे विल टेक कंसीडर योर रिप्लाई एंड हर चीज, यानी अगर हम बात करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जी कैन ड्राइव शॉट, उसको उन्होंने स्टैट्यूटरी बॉडी में लेके आए। रीजन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर फॉलो नहीं करते थे वो लोग। तो ये बहुत सारे इश्यूज हुए, बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे उसमें डिसीजन लिया गया कि ईओ इज नॉट फॉलोइंग द सुपीरियर अथॉरिटीज और डायरेक्शन। सो गवर्नमेंट ने इसको स्टैट्यूट में ले लिया, यानी 148A इज नथिंग, इट्स एक्चुअली अ जी कैन ड्राइव शॉट डायरेक्शंस embodied into this section only, प्री नोटिस प्रोसेस। तो लिटिगेशन क्या शुरू हुई कि क्या आपने जब मुझे 1 जून को नोटिस दिया तो क्या 148A दिया, नहीं दिया, तो आप 148 कैसे दे सकते हो मुझे? दैट वाज अ गुड इशू।
सबसे पहले लिटिगेशन जून 2021 में आई बॉम्बे हाई कोर्ट में, सबसे पहला लिटिगेशन। उसके बाद 7 जुलाई 2021 को एक केस फाइल हुआ इन द केस ऑफ टाटा कम्युनिकेशन बिफोर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। जून 2021 में सिर्फ 148A को चैलेंज किया गया था कि प्री नोटिस प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, लेकिन 7 जुलाई में जब टाटा कम्युनिकेशन का जजमेंट आया उसमें नॉट ओनली 148A चैलेंज हुआ, बट एक ये भी कहा गया कि हम वायरीज नोटिफिकेशन के एक्सप्लेनेशन की चैलेंज कर रहे हैं कि वो एक्सप्लेनेशन रिडंडेंट है। कैन अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन ओवररीच द पावर ऑफ पार्लियामेंट? अगर एक लॉ बन गया जो बोथ द हाउसेस से पास होके प्रेसिडेंट का साइन है, वो सुप्रीम है या एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो सुप्रीम है? लिटिगेशन शुरू हुई। इसके बाद एक जजमेंट, एक केस फाइल हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में। इस तरीके से डिफरेंट हाई कोर्ट्स में फाइल हुआ पैन इंडिया। अब जजमेंट्स आना शुरू हुए। सबसे पहले जजमेंट आया 30 सितंबर 2021 को। पहले आया सिंगल बेंच डिसीजन पलक खटूजा का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जहां उन्होंने कहा कि कर सकता है और रिट डिसमिस कर दी। उसके बाद शुरू हुआ जजमेंट। पहला जजमेंट आया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द केस ऑफ अशोक कुमार अग्रवाल, रिट टैक्स नंबर 524/2021। 30 सितंबर 2021, 4 दिन मैटर चला। आर्ग्यूमेंट्स के बाद ओपन कोर्ट में डिक्टेशन हुआ और फाइनल प्रोनाउंसमेंट हो गया 30 सितंबर 2021 को। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। दे हैव डिस्टिंग्विश्ड पलक खटूजा ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जजमेंट सिंगल बेंच। उसी पीरियड में दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, द आर्गुमेंट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड ऑन 28 सितंबर 2021। यानी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रोनाउंस किया तो 3 दिन आर्गुमेंट्स को हो चुका था दिल्ली में। फाइनली उसी बीच में जजमेंट्स हुए और जजमेंट रिजर्व हो गया दिल्ली हाई कोर्ट में, डिटेल जजमेंट। 28 नवंबर 2021 को सिंगल जज, लर्नेड सिंगल जज ऑफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ एसएससी फॉलोइंग ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन। सेम चीज, और उन्होंने यही कहा कि प्री नोटिस प्रोसेस मैंडेटरी, और वायरीज कहा कि गलत है, एक्सप्लेनेशन दे के नॉट, और ओल्ड लॉ रिपील हो गया। 15 दिसंबर 2021 को फाइनली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड अ जजमेंट, अ डिटेल वन। 12 जनवरी के अराउंड 2022 को कलकत्ता हाई कोर्ट सिंगल जज आ गए, लर्नेड सिंगल जज। उसके बाद एक के बाद एक फिर डिवीजन बेंच राजस्थान हाई कोर्ट आया, मद्रास हाई कोर्ट आया, बहुत इस तरीके से। फिर रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट आ गया मार्च में। सारे जजमेंट्स आने के बाद अब आते हैं, डिपार्टमेंट ने दिसंबर में एसएलपी फाइल की। There was 74 मैटर्स बैच, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 74 मैटर्स का बैच बना था। उन्होंने मिड में से एक केस उठाया, नॉट द लीड मैटर, नॉट द मेन मैटर, और एक केस उठाया जिसका नाम था आशीष अग्रवाल। एसएलपी फाइल कर दी, नोटिस हो गया। उस एसएलपी में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल हुआ। रिसेंटली वो जजमेंट हर्ड हुआ, डिटेल आर्ग्यूमेंट्स हुए और जजमेंट रिजर्व्ड है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन ये जहां तक फीलर है कि जो भी होगा वो पैन इंडिया इंपैक्ट करेगा सारे हाईकोर्ट। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कहा गया था कि अभी तक 8 हाईकोर्ट्स ने डिसीजन ले लिया इस पे, 8 हाईकोर्ट्स टिल डेट। अब वो जजमेंट क्या करता है वो देखने वाली बात है। बहुत सारे कोर्ट्स में, अभी नैनीताल हाईकोर्ट, बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहां जजमेंट होना है। इवन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा ने तो एडजर्न सेनेटाई कर दिया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होगा उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे व्हाट इज द आउटकम। सो दिस इज ऑल अबाउट देम। आते हैं हम ड्राफ्टिंग पे। जैसे हमने डिस्कस किया क्या होता है, लेट अस कम टू द पॉइंट। हम पहले प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन पे आते हैं। दिस प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। As soon as you receive 148 notice, first you need to file your return. Return file करने में क्या करना है? You need to file your return. Either you file your original return, if you believe कि original return ही मेरा सही return है, you file your original return, और आप AO को मेंशन कर दिए, you have filed your original return, और ये है सारी चीजें, acknowledgement number. After filing your return, write a letter to the AO seeking the reasons for issuing the notices quickly. तुरंत आप reasons मांगो, what is the reason to believe you have? रीजंस टू बिलीव की कॉपी जैसे ही सप्लाई होती है आपको ये देखना है कि तुरंत हो रही है नहीं हो रही है, और अगर नहीं करना तो यू नीड टू कीप गिविंग देम रिमाइंडर्स देके होता कुछ नहीं है। यू आर जस्ट शोइंग योर इंटेंशन दैट यू आर वेरी प्रोएक्टिव इन कंप्लायंसेस। एक चीज आप समझिएगा, कोर्ट्स किसके लिए है? कोर्ट्स इज ऑलवेज फॉर द विजिलेंट लिटिगेंट्स, नॉट फॉर द लेथार्जिक लिटिगेंट्स। सबसे पहली चीज,
ढीले ढाले लोगों के लिए कोर्ट्स नहीं है। बहुत सारे जजमेंट है जिसमें ये कहते हैं कि आप इतने दिन कर क्या रहे थे। मतलब ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां क्लाइंट वेट कर रहा है कि कोई इस केस पे कोई डिसीजन लेके आ जाए फिर हम जाएंगे, और ये पॉइंट रेज हुआ कि दे वर वेटिंग फॉर सम जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट, और 3 साल के डिले की वजह से कोर्ट ने डिसमिस किया जस्ट बिकॉज ऑन द ग्राउंड ऑफ द लैचेस। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स कि क्या है कैसे है। So then seek a reasons. As soon as you receive the reasons, you need to see each and everything line by line, word by word, para by para पढ़ो, समझो। जहां गैप दिख रहा है, just write it down and file a detailed objection. If you think that you would require material, sanction copy, take there, take everything. Ask the assessing officer for all the papers, take all the papers from them, and then give a thought and write an objection. It varies from person to person. I'm a person who doesn't believe writing case laws before the assessing officer. जरूरत क्या है, फैक्चुअल बॉडी है, आप अपने पॉइंटर्स लिखिए। केस लॉज, अब होता क्या है, केस लॉज में मैं बॉडी पढ़ता हूँ, हेड नोट पढ़ता हूँ और केस लॉ डाल देता हूँ। 80% केसेस मैंने ऑब्जेक्शन में ऐसे देखे जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोजिट साइड को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? हमने, लेकिन होता क्या, फैक्चुअली आपको ये देखना पड़ेगा जिस जजमेंट के रेशियो को आप ले रहे हो, कोर्ट के सामने फैक्ट्स क्या थे, हम ये नहीं देखते, हम उसके रेशियो पिक कर लेते हैं। इसीलिए आई ऑलवेज बिलीव कि डोंट राइट एनी केस लॉ बिफोर द एओ। आप अपने पॉइंटर्स लिखे, और मेरे ख्याल से राइटिंग स्मॉल इज ज्यादा बेटर एज कम्पेयर टू राइटिंग 100 पेजेस। आई बिलीव इन राइटिंग 3 पेजेस। जितना ज्यादा लिखोगे उतना आप अपनी चीजों में अटक जाओगे, 2 साल बाद आपको लगेगा नहीं ये क्यों लिखा। राइट लेस, ओपन योर एम्बिट फॉर फ्यूचर लिटिगेशन, ताकि हम ज्यादा कर सकें। कम लिखेंगे बेटर रहता है ऑलवेज, दिस इज माई फिलोसफी, एटलीस्ट एट द स्टेज ऑफ एओ, ज्यादा नहीं। आफ्टर फाइलिंग एन ऑब्जेक्शन, wait for the disposal, and if they are not passing a disposal, even if they are issuing you 140(1) notice, आप कुछ मत करो। 140(1) नोटिस आने के तुरंत बाद आप उनको तुरंत बोलो कि फर्स्ट यू प्लीज डिस्पोज ऑफ द ऑब्जेक्शन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जीके एंड ड्राइव शो। प्लीज जस्ट कीप राइटिंग देम, डोंट गिव देम एनी मेरिट। एक बैलेंस शीट भी मत देना जब तक वो डिस्पोजल नहीं कर रहे लीगल ऑब्जेक्शन, क्योंकि जैसे ही आपने एक डॉक्यूमेंट दिया, that is a strong ground for the assessing officer to say that yes, you have accepted, you have participated in the proceeding. They take the benefit of 292BB कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया, मुझे जरूरत नहीं है। आपको केवल ऑब्जेक्शन मांगना है, मांगना है, मांगना है। आप मांगते रहो, डिस्पोजल दे दो सुप्रीम कोर्ट। अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा, सबसे बड़ा पॉइंट ये कि आपका केस रिट के लिए बन रहा है। यू कैन एटलीस्ट मूव इन अ जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट, शोइंग योर इंटेंशन, शोइंग योर करस्पॉन्डेंस। वर्बल नहीं चाहिए, कोर्ट कहता है रिटन डॉक्यूमेंट दिखाओ कि आपने क्या क्या कंप्लायंस किया। This is a proper course. So दो stages assessment में बहुत जरूरी है, objection drafting and number 2 is reply to show cause. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, to the point लिखिए। फेसलेस असेसमेंट का जमाना है आज की डेट में। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है, what you write shows the pattern of your thought process. पैटर्न कैसे? AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जब ज्यादा घुमा घुमा के लिखना शुरू करते हैं ना, तो फेसलेस असेसमेंट में जो एओ है उसको भी समझ में आ रहा है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मिसगाइड देम। क्लियर कट टू द, और लंबा नहीं लिखने की जरूरत, टू द पॉइंट बुलेट्स में टैबुलर फॉर्मेट में जो आपको रिप्लाई देना है देते जाइए। इट इज मोर इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू डोंट नो द एओ। आपको ये नहीं पता एओ किस स्टेट से कर रहा है। ऑर्डर आने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ के समझ में आता है कि हिंदुस्तान के किस कॉर्नर से आया होगा। इंग्लिश पढ़ के समझ में आता है नहीं नहीं ये उस स्टेट का हो सकता है, लेकिन आपको तो एओ को डॉक्यूमेंट सप्लाई करना है इन अ वेरी प्रॉपर एंड लेजिबल फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट आई वांटेड टू से। Yes, I would love if the viewers have any queries, anything, if they have, they wanted to discuss anything. Sumit ji, over to you. जी sir. I try to cover each and everything in 50 minutes time. If I am little fast या कोई confusion होगा तो please आप discuss करिए। I would love कि आपके practical queries कुछ हो तो मैं address कर पाऊँ। बेटर है, आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन कवर की। नाउ इट इज टाइम टू आस्क इंटरेक्ट फॉर योर क्वेरी। Participant are there, so if you have any query and want to discuss, then you can connect. Asar, are you there? Sachin ji and other members, if you have any query relating to this topic, you can post in the chat box or unmute yourself. Inspected sir, there is a query. Namaskar, welcome Sir, नमस्कार स्मित भाई जी। सर एक्चुअली हम ऑब्जेक्शन डालते हैं, एओ एक लेटर निकालता है, पूरा कंटेंट लिखता है नोट एक्सेप्टेड, और अपना 142(1) इशू कर देता है। फिर उसके लिए क्या करें? मतलब सर देखिए, आपका जो काम है, आपको जीके एंड ड्राइव शॉट का कंप्लायंस करना है। आपका काम है ऑब्जेक्शन बहुत थॉरली। ऑब्जेक्शन थॉरो का मतलब 50 पेज का नहीं है,
फॉर मी इवन 3 पेजेस इज सफिशिएंट। होता क्या है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ लिमिटेड लिखने पे। लिमिटेड से क्या होता है, कल को ट्राइब्यूनल स्टेज में कुछ नई चीजें आई तो आप उसको इनलार्ज कर सकते हैं। ज्यादा लिखने से क्या, आप अपने आप को खुद ही बाउंड कर देते हैं। आप अपने पॉइंट पे रहिए, आपको जो भी एरर दिख रहा है, आप जब सब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, उसमें ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि आपको कैसे क्या क्या करना है। आप उनसे मांगो कि मुझे अगर मान लीजिए आज के सिनेरियो में क्या हो रहा था, 143(2) के साथ रीजन टू बिलीव दे रहे थे और डिजिटल सिग्नेचर उस डेट की थी। आप मांगो कि 148 सबसेक्शन 2 कहता है रीजन टू बिलीव शुड बी प्रायर टू द इश्यू ऑफ नोटिस, मुझे वो दीजिए जिसमें आपने नोटिस इश्यू करने की पहले की डेट है। आपका राइट है मांगना। अगर वो नहीं दे रहा है ना, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट इज देयर, यू फाइल अ रिट, और इफ यू डोंट वांट टू फाइल अ रिट देन गो टू द CIT अपील, नो प्रॉब्लम। आपको नहीं रिलीफ, आपको ट्राइब्यूनल से रिलीफ मिलेगा या हाईकोर्ट से रिट में रिलीफ, लेकिन बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए। उसको आप कहता है नहीं कंसीडर करते, दैट्स अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, यू कैन चैलेंज दैट डिस्पोजल ऑब्जेक्शन ऑर्डर बिफोर जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट। सर बहुत से नोटिस हैं जिसमें रिप्लाई दिया हुआ है, मतलब कोई भी 142 प्रोसीडिंग में हम चल लें, तो 148 का नोटिस आया, रीजन टू बिलीव मांगा, उसने वो परमिशन का लेटर लगा दिया, हमने कहा जी आप परमिशन जो ग्राउंड पे आप ले रहे हैं वो गलत है, और रीजन दे दिया। उन्होंने फिर नोटिस इशू किया कि आपके जो रीजन है वो नोट एक्सेप्ट, कोई डिस्पोज ऑफ नहीं किया कि मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करा, सिर्फ एक वर्डिंग लिखते हैं नोट एक्सेप्टेड। पूरा मेरा रिप्लाई छापते हैं 1 पेज का, और नीचे एक लाइन लिखते हैं दैट द पॉइंट अबव रिप्लाई इज नॉट एक्सेप्टेड इन आवर व्यू, हैंस डिस्पोज ऑफ। बहुत बढ़िया, फाइल रिट, बशर्ते ऑब्जेक्शन शुड बी प्रॉपर, फाइल रिट। बहुत बढ़िया पॉइंट है सर, वो राइट स्टेज है। लेट हिम पास अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, लेट हिम पास अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। नहीं, इसके बाद ये क्या होता है, हम मान लो कोई जेन्युइन था, उसमें हमने अपील कर दी है, तो अपील क्या प्रोसीडिंग में चले गए हैं केस में, और उसके बाद हमको रिप्लाई दे रहे हैं, रिप्लाई में भी वो कहते हैं अपना पूरा कंटेंट लिखते हैं और लिख देते हैं नोट एक्सेप्टेड, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते कि मैं किस लिए इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। सर ये पॉइंट अच्छा है ना, तभी तो मैं ये सारे पॉइंटर्स, देखिए क्या होता है, 1-2 स्टेजेस होते हैं 148 में रिट का, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऑब्जेक्शन डिस्पोजल स्टेज होता है, मेनी, आई एम नॉट सेइंग कई हाईकोर्ट्स एंटरटेन कर लेगी, कई हाईकोर्ट्स नहीं करती। एक ऑब्जेक्शन डिस्पोजल स्टेज होता है, एक फाइनल ऑर्डर स्टेज होता है। फाइनल ऑर्डर में रिट डिसमिस हो सकता है बिकॉज ऑल्टरनेटिव रेमेडी है 246A का। अनटिल एज वो आपको हियरिंग नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, आप जब तक वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ग्राउंड नहीं बना रहे तब तक आप नहीं जा पाएंगे। या आज की डेट में 144B का प्रोसीजरल डिफॉल्ट है, जो प्रोसीजर्स लॉ में लिखा अगर वो कंप्लाई नहीं है तो आप जाते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट करते हैं। मेरा पॉइंट फिर, अगर डिस्पोजल ऑब्जेक्शन में प्रॉब्लम है, नॉन स्पीकिंग है, आप चैलेंज करो, रिट करिए, चैलेंज रिट में। सर कोई जजमेंट भी है नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पे, मुझे काफी मिली नहीं है। सर नॉन स्पीकिंग कर ही नहीं सकता। आप सब इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जजमेंट दिया, पढ़िए तो उसे, इट्स नॉट मैकेनिकल नहीं है उसमें, और पढ़ने के लिए भी आपको आखिरी का लेयर पढ़ना है सर। सर प्लीज रिपीट करना, किसी का फोन आ गया था वो कोई बात नहीं, सब SABSH सब इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली हाईकोर्ट गूगल करिए, मिल जाएगा। और वो भी आखिरी पैरा नंबर 19 पढ़ना है आपको, बिल्कुल आपको आपने पूरा पढ़ना भी नहीं, उसमें आपको डायरेक्शन। एंड अ वेरी लर्नेड जज, थैंक यू वेरी मच, Majesty Justice Muralidhar Saab has written and very beautifully written the judgment. मतलब उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट लिखा। और इसको आप समझिए, अगर आप ITR पढ़ते हैं ना, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो मध्य प्रदेश है, बहुत हाई कोर्ट ने उसको फॉलो किया है, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया कि AO ये एरर क्यों कर रहा है जिसकी वजह से लिटिगेशन बढ़ रहा है। वो बहुत बढ़िया गाइडलाइंस, आप पढ़िए, उसमें सब कुछ है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको रिप्लाई क्या बनाना है। लेकिन रिप्लाई ऑब्जेक्शन में अगर गलती की सर, तो प्रॉब्लम आपके अगेंस्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्शन इज अ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है आपकी केस की। परफेक्ट सर, टोटली एग्री विद यू। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक केस है, कैश पार्टी का बैंक में पैसा जमा हुआ है, मतलब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं सारी जी, और कहता है जी आपका जो क्रेडिट है, बैंक में जो क्रेडिट आया है और जितनी आप सेल दिखा रहे हो वो मिसमैच है जी, इसलिए जो एक्स्ट्रा बैंक में पैसा आया है मैं उसकी एडिशन करूंगा। कोई बात नहीं, आपका रिटर्न में आपके बुक्स अकाउंट मेंटेन है, बैलेंस शीट है, रिटर्न फाइल किया प्रॉपर है, ऑडिटेड बुक्स सर, ऑडिटेड बुक्स हैं, और इसका सिंपल सा एक बेसिक रीजन था, जो पैसा आया, मान लो मैंने किसी को बिल काटा तो इंक्लूडिंग GST आएगा, हाँ, जो पैसा रिसीव होगा वो इंक्लूडिंग GST होगा, और टर्नओवर जो होगी वो विदाउट GST होगी। वो ये कहता है जी मैं नहीं मानता, मतलब नॉट एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं और उसने सर, ऑर्डर इशू कर दिया। कोई बात नहीं, ना माने सर, आपका काम है उसको प्रॉपर सिंपल वे में रिप्लाई देना, आपका काम है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो फैक्चुअल पॉइंट है, ये तब आता है जब ऑब्जेक्शन डिस्पोजल स्पीकिंग है। आप समझिए,
आप ऑब्जेक्शन डिस्पोजल के बाद का स्टेज डिस्कस कर रहे हैं मुझसे, मेरिट वाला। हाँ, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बात की बात में ठीक है। आप उसको जब देखिए, वो आपको 144B में 144B रीड विद सेक्शन 143(3) रीड विद सेक्शन 147 में शो कॉज देगा कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। 144B का प्रोसीजर है, उसमें ये लिखेगा, आप उसका प्रॉपर रिप्लाई दीजिए। सर रिप्लाई देके भी रिप्लाई दिया, बढ़िया 4 पॉइंट डाले, अनस्कोर लोन रिसीव हुआ during the सर आपका year, केस, अगर आपका केस आप वीडियो, आपका केस अनस्कोर लोन सीआईटी लिया, अपील में सुनाई होगी। एक रिफंड इशू हुआ। सर मालूम है क्या जी। प्रॉब्लम है आपको, ये वही नहीं जाना मालूम। पड़ेगा सर, अपील तो मैंने फाइल कर दिया उसका। नहीं, दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। आपका हो सकता है बुक्स कॉम्प्लिकेटेड हो, ईओ को समझ नहीं आ रहा हो। आपका काम है रिप्लाई देना, क्योंकि अगर ईओ नहीं करेगा तो फर्स्ट अपील होगा, सीआईटी अपील में होगा। एक्सप्लेन लेकिन- करना प्रॉपर्ली। हाँ, एक्सप्लेन, क्योंकि जो भी नीचे आप ये समझो, ये एविडेंस स्टेज है, फैक्चुअल। जो डॉक्यूमेंट आप फाइल करोगे वो एविडेंस है सीआईटी अपील के लिए। और ऐसा नहीं है, मैंने अपने आप से मैंने देखा है फेसलेस असेसमेंट में भी केसेस ड्रॉप हुए हैं सर। फर्स्ट अपील में भी केसेस देखिए, उनको रिजेक्शन के साथ उनको कुछ डिस्पोजल भी दिखाना होता है। जो साफ सुथरा केस हो रहा है वो ड्रॉप भी होता है, आई एम टेलिंग यू सर। आप Fine. सुमित जी, अगर 100% केस प्रॉब्लम ये रिजेक्ट है होगा कि तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा ना। राइट सर, बिल्कुल। सर उस पे प्रॉब्लम क्या है कि टैक्स इतना ज्यादा लगा देते हैं और उसके बाद अकाउंट सीज करने की प्रोसेस में गुजर जाते हैं, स्टे सर, ऑफ डिमांड आप- देते हैं कि नहीं, 20% आप- 30% बढ़ गए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, एक हुआ ऑब्जेक्शन डिस्पोजल स्टेज, दूसरा हुआ ऑर्डर आने के बाद। ऑर्डर आने के बाद अगर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आपको टाइम नहीं दिया, एक दिन के टाइम में रिप्लाई फाइल करो, ये सब कर रहे, देन यू कैन थिंक मतलब यू डिस्कस विथ योर काउंसिल लॉयर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जाना है नहीं जाना, ये मत ऐसे मत आउटराइटली नहीं जा। अगर लगता है तो चैलेंज करें, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद ना ऑल्टरनेटिव रेमेडी आ जाता है, और ऑल्टरनेटिव रेमेडी आने में जनरली कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता जब तक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है। और बाकी तो 20% है ही, सब 20% पे करिए प्री डिपॉजिट और आपका स्टे हो जाएगा। सर उसका टैक्स ही उन्होंने 5 करोड़ लगा दिया, 20% वो कहां से बढ़े 1 कोई करोड़। बात नहीं, अगर Right. आपकी बैलेंस नहीं, अगर बैलेंस शीट की सिचुएशन खराब है तो 220 सबसेक्शन 6 में डिस्क्रिशनरी पावर एओ की है। एओ के बगैर स्टे एप्लीकेशन मूव करिए। एओ स्टे रिजेक्ट करता है, पीसीआईटी के पास जाइए। कोई बात नहीं सर, वो रिजेक्ट करता है, रिट में फाइल करिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझसे पूछे, मैं आपको प्रोसेस बताता जा रहा हूँ। मनोज, राइट सर। मनोज अग्रवाल जी की क्वेरी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज जी, अगर आप हैं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मनोज जी। सर एक बार मुझे वो केस लो रिपीट करना, दिल्ली हाईकोर्ट वाला आपने बताया था जो मिला नहीं मुझे। सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। दिल्ली हाईकोर्ट 20 देखिए, Okay, सब fine, इंफ्रास्ट्रक्चर fine. दिल्ली हाईकोर्ट 2016 डालिए गूगल पे मिल जाएगा। मनोज ठीक जी। है सर, गुड ओके ओके इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, प्लीज आस्क। सर यूजुअली हम लोग अभी तक ऑब्जेक्शन के लिए डिमांड करते रहते थे और नॉर्मली पेपर भी फाइल कर देते थे, बिकॉज वी हैड की मतलब वी शुड सपोर्ट द डिपार्टमेंट एज वेल एज रेज द ऑब्जेक्शन। तो ये जी। प्रैक्टिस ऑल टुगेदर रॉन्ग प्रैक्टिस हमारी। फिर से रिपीट करिए सर। सर यूजुअली टिल नाउ हम लोग क्या करते थे कि ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था, ऑब्जेक्शन के साथ साथ ऑब्जेक्शन का रिप्लाई डिमांड करते थे एज वेल एज डिस्पोज ऑफ द ऑब्जेक्शन एज वेल एज वी कंटिन्यू टू द सबमिट द बेसिक डॉक्यूमेंट। वी डोंट गो इनटू द डिटेल। हाँ, ये गलती है सर, नहीं। दिस इज पहले रॉन्ग लीगल ग्राउंड को डिसमिस हो, ऑब्जेक्शन डिस्पोजल, मेरिट टच करेंगे। 292 डबल बी का बहुत बड़ा सोड या वेपन है डिपार्टमेंट के हाथ में वो, और उसमें यही कहा है कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो अब आप रीजन नहीं ले सकते। आप इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो डिपार्टमेंट प्लीडिंग लेता है, आप मेरिट को बोलेंगे ही नहीं जब तक डिस्पोजल नहीं होगा। जी। In that case, we should continue demand for the objection. हाँ, बशर्ते, लेकिन अगर मार्च 15 हो गई और आपको लग रहा है कि आप ये पास करने वाला है, तो आप डिस्क्लेमर और कैवेट लगा के बोलिए कि एज एन without prejudice to the main submission, because considering the time lag and considering we have a reason to believe that your learned good self is going to pass an order, that is the reason we are writing a merit. Otherwise ये लिख के करिए, वो कैवेट लगा के लिखिएगा, रिप्लाई दीजिए। अगर आपको लग रहा है ऑर्डर पास कर देगा तब आप दीजिए उसको, लेकिन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये कहा ना सर, ऑब्जेक्शन और रिप्लाई टू शो कॉज, ये दो ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। या तो आप अच्छे से कर ले, नहीं तो किसी यू टेक सम असिस्टेंस ऑफ एनी प्रोफेशनल, वहां आप ड्राफ्ट, क्योंकि वो बैकबोन है, वो एक बार आपने बैकबोन क्रिएट कर ली तो आगे तक काम आएगा आपका। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू और रजनीश सर, रजनीश जी, यू वांट टू आस्क? Yes, sir. Yes sir, please. Good evening sir. Good evening, sir. Am I audible? Yes sir, perfect. सर लिटिल लाउड सर, आवाज कम है आपकी रजनीश सर। अच्छा, अभी भी कम है सर? आप ड्राइव कर रहे हैं सर? आप ड्राइव कर रहे हैं तो वीडियो ऑफ करके अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आप पूछ लीजिए अपनी क्वेरी। सर मेरी क्वेरी ये है कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर 144C का उन्होंने जब पास किया तो उसी ऑर्डर के अंदर जो है डिस्पोजल किया ऑब्जेक्शंस का,
लाइक पासिंग स्पीकिंग ऑर्डर सेपरेटली नहीं किया और बिफोर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू करने से पहले भी नहीं किया, जबकि हम हर रिप्लाई में 142(1) में लिखते गए विदाउट प्रेजुडिस टू ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय आवर लेटर डेटेड सो एंड सो. सो इज इट अ गुड केस फॉर रिट? And if You can yes, take a chance. then Yes, the बशर्ते judicial sir, right अगर आप to- regularly you are asking for disposal objection, then you can take a chance. Take a chance. I cannot say that it's a, but yes, this is a case wherein you can take a लेकिन chance. हम सर रिप्लाई तो हम सर एक थोड़ा सा और प्रैक्टिकल चीज पूछना चाहूंगा. यू मे और यू मे नॉट कमेंट. Like Delhi High Court, we get very good judgments in writ also, but what about Punjab, Haryana? So courts are all honorable, but I mean there's some kind of, जैसे आपने कहा ना चांस ले सकते हो, तो दिल्ली हाई कोर्ट में चांसेस ब्राइट है इस पॉइंट पर, बट आई डोंट नो अबाउट पंजाब हरियाणा तो देखिए जजमेंट्स. आई मीन sir, it varies. मैंने आपको Just a क्या hint. बोला? I'll tell you. When you read Article 226 and Right, sir. 227, that gives a discretionary power to the court. Try to appreciate, sir. Discretionary power मतलब एग्जाम्पल लू, Okay. मैं मुझे नहीं इन्वोक करना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ फैक्ट्स, मैंने मना कर दिया. हो सकता है सेम इशू दूसरा हाई कोर्ट एंटरटेन कर ले. मैं वो इशू कहता हूं अच्छा है जहां मुझे लगता है हर कोर्ट में आपका हो सकता है. देखिए मैं आपको बताता हूं, हर कोर्ट लॉ जानती है. आप लॉ पढ़ाइए उनको. मैं कहता हूं जो टैक्स नहीं भी कर रहे हैं जी. कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको लॉ, मेरे पास आइए क्रिमिनल लेके, FIR कॉशिंग. मैं टैक्स का लॉयर या आर्बिट्रेशन का लॉयर हूं या इंसॉल्वेंसी का, मैंने क्रिमिनल केस नहीं किया. लेकिन अगर आप मुझे लॉ दिखाते हैं, जजमेंट दिखाते हैं, केस दिखाते हैं, तो मुझे एज लॉयर समझ में आती है सारी चीजें. सो मेरा पॉइंट ये है, चांस लेने वाली बात है. अगर आपने कंटिन्यूअसली डिस्पोजल की बात की है, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपके पास आता है, आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं डिस्पोजल और फिर बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं बचा इसलिए मैं दे रहा हूं, तो उस केस में आप चांस लेने का मतलब सर देखो, रिट इज ऑलवेज 50-50. कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता कि आपका क्या होगा कई. सो पॉइंट ये है कि हाँ, जहां डिस्पोजल नहीं किया और अब आपका कर रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, ड्राफ्ट ऑर्डर सेट असाइड करके कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि वापस जाओ, ऑब्जेक्शन डिस्पोजल अब दिया है, इनका रिप्लाई लो, 2 हफ्ते का टाइम लो. ये कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगी वो स्टैट्यूट से ऊपर है. तो उस केसेस में ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कॉश होके पीछे जाएगा, केस जा सकता है. वो आपको कहेगा डिस्पोजल दे दिया, अब इनको 2 हफ्ते का टाइम दो, उसके बाद इनसे डॉक्यूमेंट लो, उसके बाद फाइल करो. ये कर सकता है कोर्ट. अब ऐसे भी ड्राफ्ट ऑर्डर में 30 दिन, सर ड्राफ्ट ऑर्डर में 30 दिन का टाइम होता है. आपको या तो एक्सेप्ट करना है, या तो DRP जाना है, या तो फर्स्ट अपील जाना है. वो तो ड्राफ्ट ऑर्डर है ना, डिमांड तो आपके ऊपर आई नहीं है अभी तक, लेकिन उस स्टेज में भी आप चैलेंज कर सकते हैं उसको. सर 30 दिन के बाद नहीं कर सकते सर मतलब चैलेंज नहीं कर तो आप रिट में सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है सर, मान लो रिट डिसमिस हुआ आपका, तो कोर्ट से आपको लिबर्टी मांगनी पड़ेगी कि मुझे लिबर्टी दीजिए क्योंकि मेरा टाइमलाइन निकल चुका, एटलीस्ट DRP या फर्स्ट अपील मेरे केस को मेरिट पे सुन ले, डिले की वजह से डिसमिस ना करे. अगर कोर्ट लिबर्टी दे देगी तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है. लेकिन फिर लिबर्टी, अगर 2 चीजें सर, या तो अलाउ होगा आपका या डिसमिस होगा. अगर अलाउ हुआ और स्टे हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर डिसमिस हो गया तो लिबर्टी मांगना पड़ेगा कि ताकि हम वहां पे मेरिट में मेरा सुने, डिले की वजह से डिसमिस ना करें. अगर कोर्ट लिबर्टी देगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो. लेकिन इन सब केसेस में सर क्विकली जाना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप 28वें दिन रिट फाइल करें, क्योंकि लिस्टिंग में भी टाइम लगता है सर. राइट. सो जैसे ही ऑर्डर आता है 5 दिन में डिसाइड करिए क्विकली, क्योंकि लिटिगेशन इज ऑल अबाउट क्विक. मतलब अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ और उसको ऑपरेशन थिएटर में 3 दिन बाद जाएंगे, वो तो मर जाएगा. So you have to be very quick. Right, sir. Understood fully, sir. Thank you. So Thank sir, you so as much. lawyer, Thank you so much. I understood. clear ना सर? बाकी आप जा सकते हैं सर. मैं फिर कहूंगा सर. Thank you, Razak ji. Thank you. And another query by Sudesh ji. Stay ground, please tell stay grounds except fund shortage. Fund shortage के अलावा कौन से stay ground यूज कर सकते हैं? सर आप मुश्किलें बता सकते हैं, कोविड में किसी की डेथ हो गई, ग्राउंड्स ले सकते हैं. मेजर ग्राउंड तो फाइनेंशियल हार्डशिप होती है, लेकिन मैनेजमेंट हार्डशिप चल रही है. मान लीजिए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है सर, आपस में लड़ रहे हैं सारे डायरेक्टर्स और NCLT में केस पेंडिंग है, तो अब ऑडिटर भी, आपको पता है जब डायरेक्टर्स लड़ रहे हैं तो ऑडिटर भी अपॉइंट नहीं कर सकते. सुमित जी करेक्ट? बिल्कुल. ना लॉयर अपॉइंट कर सकते, क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए सारे डायरेक्टर किसी एक को देंगे. जब सारे डायरेक्टर ही लड़ रहे हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं. या आपके केस में IRP अपॉइंट हो गया, तब तो मैनेजमेंट ही, डायरेक्टर ही सस्पेंड हो गए सारे, वो भी एक ग्राउंड है. आप कोई भी एक्सेप्शनल केसेस या एक ऐसी चीज जहां नई कंपनी टेक ओवर कर रही है, मर्जर स्कीम में आ रहा है और कहा है कि आप कोई भी राइट्स एक्सक्लूसिवली अवेल नहीं कर सकते बिना मेरे से पूछे, उसमें डिले हो रहा है, एनीथिंग विच इज अ प्रोसेस, आप उस ग्राउंड को ले सकते हैं. मतलब ये सारे ग्राउंड्स मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे सामने आए हैं प्रैक्टिकली अभी तक जो हमने फेस किए. जी. चंदन जी, गुड इवनिंग.
अतुल जी की नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं. Should we file objection in new section 148 when already 148A is issued? वेरी गुड Means- चंदन. चंदन जी का क्वेश्चन है. नहीं, ये क्वेश्चन है अतुल गुप्ता जी का. सर अतुल सर, वेरी गुड क्वेश्चन सर. 148 मैं बताता हूं 20 मार्च 2022 से शुरू हुआ. मिनिमम 7 दिन का टाइम देना जरूरी था, मैक्सिमम 30 डेज न्यू लॉ में. कई केसेस में 10 दिन दिए गए, कई केसेस में 3 दिन दिए गए. अगर 7 दिन से कम का टाइम दिया है तो सीधे रिट में चैलेंज कर दीजिए. स्टैट्यूटरी कंडीशन का डिफॉल्ट है वो. अब आता है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर. गुलमोहर करके एक मिनट, लेट मी सी इफ आई हैव, आई विल शो यू दैट जजमेंट. बहुत अच्छा है, मतलब हाँ है मेरे पास, सेव है इसमें. ये आप ये मेरा, अच्छा सुमित जी स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना मेरा. मैं एक मिनट अभी नहीं शेयर दिख कर, रहा है, अभी विजुअल नहीं है. मैं दिखाता हूँ एक सेकंड. मैं आपको अब सर का एक क्वेरी का जवाब दे देता हूं मैं ना. मैं आई एम अवेयर बिकॉज हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट में जाते जाते रुक गए उन्होंने बिकॉज ऑफ दिस फर्दर जजमेंट. लिखा है कि मींस शुड वी फॉलो द सेम प्रोसीजर एज वी वर फॉलोइंग इन द ओल्ड सेक्शन. नहीं सर, सुमित जी सर को ये जब दिखा देंगे तो सर ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे. राइट सर. सर ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर? हाँ जी सर. जी ये गुलमोहर सिल्क मिल्क प्राइवेट लिमिटेड अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए आप चाहें तो रिट नंबर नोट कर लें. ये 7 अप्रैल 2022 का जजमेंट है. इंटरेस्टिंगली चीज, मेरे पास 3 रिट रखी थी इस पे, रेडी थी फाइलिंग के लिए. जजमेंट आते ही मैंने रोक लिया. अब क्या हो. सो गुलमोहर सिल्क मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गया. अच्छा जी. मैं रेलेवेंट पैरा पढ़ रहा हूँ. देखिए एक चीज समझना सर, आप, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा. लीगल पॉइंट के अलावा बहुत जरूरी है आप अपने केस के फैक्ट्स को समझें. हाँ जी. ऑनरेबल कोर्ट ना फैक्ट्स भी देखती है बिफोर डिसाइडिंग द लीगल. अगर फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हाई कोर्ट एक चीज हमेशा, हाई कोर्ट का एक फिलॉसफी हमेशा होती है, ऑलवेज कम विद अ क्लीन हैंड. साफ सुथरे हाथ को लेके आओ. डॉक्यूमेंट कंप्लायंस, जैसे आप मेरे से आप कहें कि दिव्यांशु रिटर्न फाइल नहीं किया, ओरिजिनल ये आ गया 1 करोड़ का डिपॉजिट, मैं कहूंगा सर रिट में मत जाओ. क्यों? मुझे पहले ही फैक्ट्स उसका बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं सर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी. तो बहुत जरूरी हाई कोर्ट पर्सपेक्टिव एक चीज ध्यान रखना है कि यू हैव टू कम विद अ क्लीन हैंड. सो इस केस में क्या हुआ सर? पहला केस था 148A क्लॉज डी. मैं पढ़ता हूं. Present writ petition has been filed challenging the order dated 28th March 22 passed by respondent under section 148A clause D of the act for the assessment 1819. 1819 क्यों सर? 3 साल का जो क्लॉज था, 18-19 was the first and the last period जो टाइम बारिंग हो रहा था 3 साल वाला on 31st March 22. करेक्ट सर? यस सर. इस बार एओ को कंफ्यूजन क्या था? ये लॉ में बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर आपने 7 से 30 दिन का टाइम दिया एसएससी को और एसएससी ने टाइम लिया रिप्लाई करने का, तो उतना टाइम का एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको. हाँ जी. वो समझ नहीं पा रहा था वो, अरे आपने मुझे 10 दिन दिया तो 31 मार्च प्लस 10 दिन. हाँ सर. हाँ जी. 31 मार्च 10 दिन. हाँ, लेकिन एओ को नहीं मालूम सर क्या हो रहा है. नीचे वाली टीम जो एग्जीक्यूट कर रही है ना, उसको पता नहीं था. हाँ जी. सर एक रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज फोन को साइलेंट कर लें. शोकॉज नोटिस इशू किया गया सर 7 मार्च को. हाँ जी. शोकॉज हुआ 148A क्लॉज बी में. सेम है, आप इसको ना अपने केस से रिलेट करिएगा, मैं इसीलिए ये ले रहा हूं एग्जांपल. हाँ जी. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? हेलो. Learned counsel for the petitioner states that the impugned order is a non-speaking order. इसमें 148A clause D का ऑर्डर 28 मार्च को पास हो गया. जो अभी सर बता रहे थे नॉन स्पीकिंग, इसमें नॉन स्पीकिंग ऑर्डर विच डज नॉट डील विद द कंटेंशन रेज्ड बाय द पिटिशनर एंड रिप्लाई. उन्होंने कहा कि मैंने जो अपने रिप्लाई में लिया उसका कंटेंशन उसने लिया नहीं और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर दिया. फिर उन्होंने लिखा कि he states that the impugned order has been issued in a mechanical way and without any independent application of mind. ये सब अंडरस्टैंडिंग आ रही थी वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर से. By placing reliance on the information provided by the investigation wing which does not have any rational nexus with the petitioner. He states that the information mentioned in the show cause notice pertains to the assessment year 14-15 which has been used to frame reason to believe escapement of income for assessment year 18-19. 14-15 का इंफॉर्मेशन था, 18-19 में लिया गया. ये अब आप देखिए, मैं आपको अब रेलेवेंट पारा बता रहा हूं जहां मैं ये समझा रहा हूं कि फैक्चुअल कितना इंपैक्ट करता है केस पे. A perusal of the paper book reveals that in the impugned order dated 28th March, the respondent has opined that the petitioner assessee has not been able to rebut the statement. अब सुनिएगा सर ध्यान से. Made on oath by the entry provider. अब ये ऐसा शब्द आता है जहां एक बार सामने वाला सोचता है क्या है ये ट्रांजेक्शन. अब बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक्स एंट्री प्रोवाइडर. तो आप देखिए फैक्चुअल पे बहुत फर्क पड़ता है केस का फैक्चुअल पे.
It is also stated that the DGGI Ghaziabad had conducted a search and seizure action in this case under CGST Act at so and so, so and so, and so and so date, and it reached same conclusion. ठीक है साहब? हाँ जी. अब आते हैं, अब देखिए कोर्ट का व्यू. Consistent, consequently, this court is of the view that the impugned order is a speaking and reason order. कोर्ट ने कहा कि ये स्पीकिंग रीजन ऑर्डर, आपने कहा नॉन स्पीकिंग. कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट हैज सेड कि इट इज अ स्पीकिंग ऑर्डर. कोर्ट ने कहा परसिस्टेंटली द एसएससी हैज ओनली सबमिटेड. अब देखिएगा सबका क्वेश्चन मैंने क्यों कहा कंप्लायंस करिए, हाई कोर्ट देखता है. देखिए यहाँ क्या हुआ, द एसएससी हैज ओनली सबमिटेड बैंक स्टेटमेंट नॉट द बुक्स ऑफ अकाउंट बिफोर द एओ. अब हुआ क्या, जैसे ऑनरेबल कोर्ट को देखा कि आप आधा पेपर दे रहे हो आधा नहीं दे रहे हो, तो क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन गलत है. पेपर क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आप साफ सुथरे हो तो व्हाई आर यू नॉट सबमिटिंग द पेपर्स? अब मैं इस जजमेंट को पढ़ा के आपको, अभी सर ने पूछा था कि रजनीश सर ने पूछा कि अलग अलग कोर्ट, नहीं सर, मैं मानता हूं कानून बड़ा है, मैं मानता हूं फैक्ट्स बड़े हैं, आपको अपना केस समझ में आना चाहिए. कोई भी कोर्ट हो, हाँ ये हो सकता है कि कोई कोर्ट रिलीफ दे देती है, सुनिए कोई कोर्ट नहीं देगी, लेकिन आप हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहे, आपको केस पता होना चाहिए. यहाँ पे अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट दे देते को तो शायद ये आउटकम डिफरेंट होता. यहाँ कोर्ट ने बोला कि आप सिर्फ, जब वो मांग रहा है तो आपने बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? देखिए सर, रेवेन्यू गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से कंप्लायंस में डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए. ये जो ऑनरेबल कोर्ट का व्यू है, आप अगर साफ हो तो आप डॉक्यूमेंट दो ना, लेट देम टेक अ कॉल, लेकिन आप अपने पेपर मत होल्ड करिए. डोंट हाइड एनी डॉक्यूमेंट्स. Further, this view that the ratio of the Supreme Court judgment is clearly attracted to the facts. अब मैं बोल्ड में आता हूं सर, इटैलिक्स में. In determining whether commencement or reassessment proceeding was valid, it has only to be seen. अब आप देखिए, सबके लिए मैं बता रहा हूं, कोर्ट ने क्या बोला, वैलिड है या नहीं, क्या देखना चाहिए ईओ को. कोर्ट ने बोला in determining whether the commencement or reassessment proceeding was valid, it has only to be seen whether there was a prima facie some material on the basis of which a department could reopen the case. अब सर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने कहा एग्रीकल्चरल लैंड की सेल है और आपने 5 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट किया, क्या इस इटैलिक्स में नहीं फॉलो होता? प्राइमा फेसी तो समझ में आ रहा है ना कि 5 करोड़ डिपॉजिट हुआ है, एसएफटी रिपोर्ट हुई बैंक से और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो समझ में तो आ रहा है ना गड़बड़ है, कुछ हो सकता है. ठीक बात. हो सकता है ट्रांजैक्शन सही हो, लेकिन वो तो जब आप बताएंगे, रिटर्न फाइल करेंगे तब, तो वो कह रहा है वही ट्रिगर पॉइंट बहुत बड़ा है. इसीलिए सर जिन केसेस में रिटर्न नहीं फाइल होता, मैं कभी नहीं कहता आप रिट करो, मैं कहता हूं पहले कंप्लायंस करो, क्योंकि रिटर्न नहीं फाइल करने से इंटेंशन आता है कि आप कुछ छुपा रहे हो. सर कोई भी हो सर, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो तो फीलिंग आती है कुछ गड़बड़ है, आप क्यों नहीं दे, लेट हिम डू व्हाटएवर ही इज डूइंग, आप पेपर सप्लाई करो. तो ये इटैलिक्स इंपॉर्टेंट है सर, ये मैं आपको फिर दिखा रहा हूं, ये फॉर एवरीबॉडी. ये व्यू आप सुनिए. इन डिटरमाइनिंग वेदर कमेंसमेंट ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग वाज वैलिड, इट हैज ओनली टू बी सीन whether there was a prima facie some material on the basis of which the department could reopen the case. Prima facie, कहीं भी आपने एग्जेंट इनकम 3 करोड़ रुपए दिखाया लेकिन कॉलम में नहीं दिखाया, सर दैट इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर यू टू रीओपन योर केस. छोटी सी भी एरर वो प्राइमा फेसी बन जाता है. हाँ फाइनली तो जब असेसमेंट करेगा तब उसे पता चलेगा. एक चीज और दिखाता हूं सर आप लोगों के लिए, ये देखिएगा, ये बहुत ध्यान देना है आपको सर. आप एओ ने 5 चीज मांगी, आपने 3 नहीं दी, फिर हाईकोर्ट सेज, देन हाईकोर्ट टेक इट अदरवाइज, कि क्यों आप क्यों नहीं दे रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. तीसरी चीज दिखाता हूं, तीसरी चीज जो नेगेटिव बनाता है, तो ये देखिए, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, प्लस इतना होने के बाद भी आप पेपर सप्लाई नहीं कर रहे हैं. अब यही सर ऐसा केस होता है जिसमें फॉरेन कंपनी होती है, जिसमें सारा कंप्लायंस कर रहा है. आप समझिएगा मेरी बात, मेरा ओरिजिनल असेसमेंट हो गया, सब कुछ साफ सुथरा है मेरा, ठीक है सर, सब कुछ साफ सुथरा होने के बाद ये नहीं होता और मैं सारा डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रहा हूं, तो ये जजमेंट अलग होता फिर, कि वो दिखा रहे हैं कि देखो मैंने तो कोई मेरी तरफ से कोई एरर नहीं है. मैं एक और जजमेंट आपको दिखाऊंगा सर, अभी बड़ा अच्छा जजमेंट है, मैं बताता हूं उसका. अब देखिए, अब मैं आप लोगों को एक फाइंडिंग पढ़ाऊंगा, पैरा नंबर 6, प्लीज आप देखिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. Though it is the petitioner's case that the impugned order is erroneous on facts, yet ये देखिए, this, अब आप सुनिए आप लोग, 148 क्लॉज बी में जितने लोगों का व्यू था, yet this court is of the opinion that the petitioner would have ample opportunity during the course of proceeding before different statutory forum to show that the finding of fact arrived at was erroneous. Moreover, at this stage, no assessment order has been passed and it has only been observed that it is a fit case for issuance of notice under Section Act. तो वो कह रहे हैं आपको तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप करिए उनके सामने जाके.
हाँ, अभी अब रिट में आने की क्या जरूरत है आपको? हाँ, हल्के बहुत सारे कोर्ट ने, अच्छा कोर्ट ने ये नहीं, कोर्ट ये कह रही है कि अगर रिट में आना है तो ऑब्जेक्शन डिस्पोजल जब करेगा, अगर गलत करा तब आओ मेरे पास, अभी नहीं आओ। मैंने आपको पहले भी कहा सर, आप आंख बंद करके रिट नहीं कर सकते। आपको अगर लगता है, जैसे सर ने बोला कि ड्राफ्ट रेसेशन ऑर्डर पे दिव्यांशु जा सकते हैं, मैंने कहा सर आप फाइल दिखाइए, मैं आपको, और कोड बताइए, मैं आपको बता दूंगा जा सकते हैं कि नहीं। और अगर कहीं भी केस में ना 50-50 अगर मैं आपसे बोलूं सर 50-50 केस है तो रिट फाइल कर दीजिए। 50-50 मतलब इधर भी हो सकता है, लेकिन अगर केस ही 90% आपके अगेंस्ट, अब ये वाला आप केस लेके आते हैं ना मेरे पास, तो मैं कहता सर 75% 25% चांस है, ये 75% जा सकता है, 25% नोटिस होगा। क्योंकि ये देखे ना, ये देखिए एंट्री प्रोवाइडर, सर सीजर, फिर आप पूरा पेपर नहीं सप्लाई कर रहे हैं आप, ये ट्रिगर पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, ये ट्रिगर पॉइंट्स देखिए, एज काउंसिल भी आपको ये ट्रिगर पॉइंट्स दिख रहा है कि क्यों। बट और फिर कोर्ट ने, सॉरी सर, अगर पॉइंट इज जब 148 इशू हो गया, 148A का ऑर्डर भी आ गया, हाँ उसके बाद नया 148 आ गया हमारे पास में। करेक्ट सर, 148 का जो प्रोसीजर फॉलो करना है, जो हम पहले फॉलो करते थे ओल्ड केस के अंदर, मतलब ओल्ड सेक्शन 148 में, वो सेम सिनेरियो में आज भी फॉलो करना मींस ऑब्जेक्शन फाइल रीजन टू मांगने हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, अनटेस्टेड क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये अनटेस्टेड क्वेश्चन है। सो बिल्कुल सही है, अगर वो नहीं करना है और एओ कुछ कह रहा है तो एओ हैज टू राइट इट डाउन। अगर वो एओ ने लिख दिया सर, मैं आपका केस लेके दिल्ली हाईकोर्ट चलूंगा सर, क्योंकि अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला, आप एओ के पास जाओ, प्रोसेस फॉलो कर। अगर वो लिखता है कि इस प्रोसेस में अब नहीं लगता, देन वील गो टू दिल्ली हाईकोर्ट, बट ही हैज टू राइट। और अगर वो लिखेगा सर तो इतना आसानी से वो लिख नहीं सकता, ही हैज टू टेक कंसेंट फ्रॉम हिज सीनियर्स आल्सो। अगर आप देखेंगे तो हर स्टेज पे उसको सीनियर्स से कराना है। एक्चुअली हमारे केस में सर, सॉरी सर, हमारे केस में सर 148A का जो नोटिस है वो हमें मिला ही नहीं है सच, मतलब वो पोर्टल पे आ गया, बट जो हमारी मेल आईडी है उस पे भी नहीं आया, और जो फोन पे मैसेज आते कुछ नहीं आया, जो फिजिकल भेजी थी वहां से एसएससी मूव कर सर चुका। आप, मैं एक सजेशन दूं, अगर ये केस है रिट फाइल कर दीजिए, मैं आपको तुरंत बोल रहा हूं, इट्स अ गुड। लेकिन रिट में ग्राउंड सर मेल का लेंगे कि मेल पे मिला नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ऑलरेडी एडवर्स है। हाँ आप लीजिए, मैं, आप बताइए ये केस, ये पक्का 100% इस पर नोटिस होके कहा जाएगा, डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिलवाया जाएगा कि आप चेक करो इनको मेल भेजा है कि नहीं। और अगर कोर्ट जवाब, अगर डिपार्टमेंट नहीं प्रूव कर पाया, आप एफिडेविट लगा दीजिएगा ना कि मेरे पास मेल नहीं आई है। डिपार्टमेंट अगर नहीं प्रूव कर पाया तो वो नोटिस सेट असाइड हो जाएगा। बट सिर्फ इस पॉइंट पे, क्योंकि हाईकोर्ट ऑलरेडी एडवर्स व्यू ले चुका है, केवल इस पॉइंट पे जाएंगे कि मेल नहीं मिली। सर अगर अमाउंट 50 लाख से अबव है तो फिर वो नेक्स्ट 10 साल वाले कैटेगरी में दोबारा परमिशन लेके फिर नोटिस को, वो तो सर, वो तो विंडो खुली है, करेक्ट। नहीं नहीं, बट वो ऐसा क्यों करेगा सर, वो अगर सेट असाइड कर दिया या कॉस्ट कर दिया, हाँ अगर वो बड़ा अमाउंट है तो यस सर, छोटा अमाउंट है तो टाइम बार्ड हो जाएगा, करेक्ट। छोटा अमाउंट है तो टाइम बार्ड हो गया, लेकिन अगर बड़ा अमाउंट है तो वो अपने नोटिस को, नया नोटिस सर नोटिस, लेकिन आपको नहीं पता ना, आज 3 साल बाद होगा, 4 साल बाद, आपको तो पता नहीं है सर। तो अगर आज की डेट में, ये मेरा मानना है कि अगर आज आपका 104 फीवर है, 105 फीवर है, तो पैरासीटामोल काम नहीं कर रहा, तो तुरंत आपको टैप वाटर के नीचे बैठ के नहा लेना चाहिए, एटलीस्ट टेम्परेचर तो डाउन होगा, नहीं तो ब्रेन में चला जाएगा सर। सो अगर अभी एरर है, आगे क्या होगा आगे का देखेंगे सर। लेकिन अगर ये ईमेल वाला क्वेश्चन है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं सर, सेम फैक्ट्स पे आप जाइए रिट में, बट आप चेक, क्योंकि एफिडेविट देना पड़ेगा आपको, आप डबली श्योर हो जाएगी ईमेल नहीं मिली है। चेक कर लिया सर, मेल तो पूरा रिट फाइल सर, 148 के लिए मैसेज आ गया सर, 148A का नहीं आया मैसेज। सर रिट फाइल कर दो, सिर्फ इस ग्राउंड पे मेल नहीं मिली, रिट फाइल कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू अतुल सर फॉर वंडरफुल डिस्कशन। एंड सर लास्ट क्वेरी, अगर कोई और पार्टिसिपेंट की क्वेरी है सर बताइए। पोस्ट इन द, नहीं क्वेरी नहीं है, जनरली ही इज आस्किंग सीए मिलन राजा जी कि कोई केस लॉज के लिए कोई पेड साइट और कोई बुक व्हाट टू रेफर। सर मैं तो यही कहूंगा, केस लॉ से बेहतर, अगर जब आपके पास जब इश्यूज आते हैं ना, और इश्यूज को जब आप हर सेक्शन को जब हर बार इश्यूज में पढ़ते हैं तो सेक्शन अलग तरीके से कलर्स दिखाता है। तो वैसे भी अगर आपको पढ़ना है तो मेरे ख्याल से सर आप इस पे जा सकते हैं, ITATonline.org इज फ्री, उसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अपलोड कर देते हैं इनकम टैक्स के। नॉट एवरी जजमेंट, बिकॉज हर जजमेंट के लिए आपको यू नीड टू बाय, बट फ्री के लिए यू कैन स्टार्ट विद दैट एटलीस्ट। ITATonline.org ITATonline.org, उसमें रेलेवेंट जजमेंट, ट्राइब्यूनल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सब रेलेवेंट जजमेंट्स होते हैं। So I think no other query. Any participant you, any other query? काफी अच्छा डिस्कशन रहा दिव्यांशु भाई फॉर योर टॉपिक। अतुल सर को तो मैंने सजेस्ट कर दिया, अतुल सर रजीश सर को ग्रेड फाइल कर दीजिए आप लोग। नहीं डेफिनेटली काफी लोग कहीं ना कहीं अपनी ओपिनियन फ्रेम कर पाएंगे और आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे विद योर गाइडेंस। अरुण जी, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन।
I think sir, anybody any Sir, else this is question? not कोई a भी weird interesting, सा भी this is thought आ a रहा था आप discuss कर fabulous लीजिए. session. thank you Ritan bhai, thank you. So Devanshu bhai, already we have these 3 sessions, so almost all queries and all other issue has been resolved, and for further we will again plan after the Supreme Court verdict. We will definitely plan one more session on this, and in the meantime We can special Sumit ji, we can plan a session maybe a day just after a day of Supreme Court judgment. But Yes, देखिए, sure. probably I'm expecting what my understanding is, I'm expecting a judgment by tomorrow end of the day, because last working day है ना कोर्ट का. या फिर आपको बताऊं, ये जजमेंट 15 मई से सुप्रीम कोर्ट ऑफ हो रहा है वेकेशन पे. Okay, अगर इस हफ्ते आगे आ गए, नहीं तो ये 15 मई के पहले वेकेशन में जाने के पहले जजमेंट तो आ जाएगा. okay. और तो वो जब भी जजमेंट आएगा, इंपॉर्टेंट होगा. जब भी आएगा तो उसके नेक्स्ट डे वी विल प्लान ये सेशन. नेक्स्ट डे कर लीजिए, अब ज्यादा डिले भी की जरूरत नहीं, नेक्स्ट डे कर लीजिए. नेक्स्ट डे प्लान कर लेंगे जब भी आता है. एंड तब तक के लिए सर थैंक यू वेरी मच सर Devanshu ji for a wonderful. Thank you so much, and most important, I'm very thankful to you, all of you, and Sumit ji and everybody. Kal I was actually traveling to Allahabad. There was one matter listed in Allahabad High Court. Right. So मैंने सुमित जी से रिक्वेस्ट की कि मैं भाग दौड़ में होऊंगा, कहीं ऐसा ना हो मैं मैटर प्रॉपर टेकअप ना कर पाऊं सेशन. जितने आराम से आप अपने ऑफिस से कर सकते हो उतना आप बाहर से नहीं कर सकते आप. नहीं सर, आज बेटर रहा, कल से बेटर आज रहा. So we all benefited. And I hope everybody has enjoyed the session. Right. Good lecture by Alok ji. Thank you Ritin ji, thank you Atul ji, Chandan bhai, and thank you to all participants who have joined and make this interactive session. Thank you Devanshu bhai once again. Thank you so much, Sumit bhai. Thank you everybody. Thank you Team Kasa. Thank you. Thank you.